الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق نمبر 11A میں آپ کو خوش آمدید. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے. گرامر میں فعل ماضی کو کنٹینیو کریں گے، کچھ نئے صیغے سیکھیں گے. 16 نئے الفاظ ہیں جو آج ہم سیکھیں گے، جو قرآن پاک میں تقریباً 2000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو سبق نمبر 11 کے اختتام تک انشاءاللہ آپ ٹوٹل 131 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 31,000 آئے ہیں. سورۃ الاخلاص کا جو تعارف ہے وہ کر لیتے ہیں جی کہ یہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور نام اس کا اخلاص یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. یہ لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل کی گئی. تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. تو انہی میں ایک حربہ ان کا یہ بھی تھا. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں ان کے تو بڑے حسب نسب ہیں، تو آپ کا جو رب ہے اس کا کیا تعارف ہے؟ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ نازل فرمائی، اور یہ رب کا تعارف ہے بیسیکلی. اتنی اہم صورت ہے یہ کہ اس سورہ کو 1/3 قرآن کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے 3 بڑے ٹاپک ہیں. ایک یہی ہے توحید، اللہ کی وحدانیت، اس پہ ایمان لانا. پھر رسالت ہے نمبر 2، اور پھر آخرت پر ایمان لانا. تو باقی سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ انہی کے سب کیٹیگریز ہیں. تو اس لیے 1/3 جو ہے یہ کانٹیکس کے حوالے سے، میننگ کے حوالے سے، یہ اللہ کا جو تعارف ہے یہ 1/3 قرآن ہے بیسیکلی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے ایک رات میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے جی. تو یہ سورہ مبارکہ چھوٹی سی ہے، ہم سب کو یاد بھی ہے، لیکن انشاءاللہ اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو اس کے صحیح ایسنس کے ساتھ، اس کے صحیح معنی کے ساتھ اس کو ہم جانیں، کیونکہ یہ رب کا تعارف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے. مغرب اور فجر کی نمازوں کے بعد 3 بار پڑھا کرتے تھے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ بالکل ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے یہ سورہ مبارکہ. اس لیے ہماری یہ روٹین میں ہونا چاہیے تاکہ رب کا تعارف جو ہے، اللہ کا تعارف جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بس یہ 4 آیات ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ ایک
तिहाई कुरान के बराबर है, 1/3 ऑफ कुरान बेसिकली, तीसरा हिस्सा। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। कुल आप जानते हैं कि आप कह दीजिए या आप कहिए, ये है कुल, यानी एक अल्लाह की तरफ से होगा तो ये ऑर्डर होगा। और अगर हम गुजारिश करेंगे किसी बड़े को तो हम कहेंगे कुल, गुजारिश है ये कि आप फरमाइए, आप कह दीजिए। या अदब में भी फरमाइए आ सकता है। काला, उसने कहा, ये आप जानते हैं माजी है। काला, काला उसने कहा। कालू, उन सब ने कहा। इन सब का जो रूट वर्ड्स हैं ये वहीं से निकलते हैं। काफ वाव लाम है, और ये आप आगे जाके इंशाल्लाह जानेंगे कि वो वाव किधर गया, लेकिन असल रूट वर्ड्स जो हैं वो काफ वाव लाम ही हैं। तो कुल हुवल्लाह, ये हु भी आप जानते हैं, हुआ, हुआ और अल्लाह इसम है। तो कह दीजिए वो अल्लाह, अहद, अहदुन, एक, अकेला। एक के मानी में ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा, ये हमेशा याद रखना है। और भी इसके मानी आते हैं, इसी सूरह मुबारका के एंड पे भी आ जाएगा। लेकिन जब हम एक के मानी लेंगे, अहद, अकेला, एक, तो हम बात करेंगे अल्लाह की। जैसे हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाया करते थे जब उनका मालिक जो है उन पे जुल्म करता था तो कहते अहदुन अहदुन, उनका मतलब क्या होता था, अहदुन, अल्लाह। कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहद, इससे क्या असबाक मिलते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग असबाक हैं इसमें से, जो हमें अपनी दिलो जान के साथ गिरा बांध देनी चाहिए कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो अपनी ज़ात में अकेला है, यकता है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई रिश्तेदार, कोई उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर ना माँ बाप, कोई है ही नहीं, वो अकेला है। वो अपनी सिफात में यकता है, उस जैसा कोई देख नहीं सकता, उस जैसा कोई सुन नहीं सकता, कोई मदद करने वाला नहीं है उसकी तरह, उसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं है ही नहीं, कोई मिसल ही नहीं है उसकी। अपने हकूक में वो यकता है कि ये अल्लाह का हक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हक ये क्या है कि उसको सजदा किया जाए, उसकी इबादत की जाए, उसकी बातों को माना जाए। इख्तियारात में वो यकता है, वो जो चाहे करता है। तो उसने हमें जो इख्तियारात अपने इस्तेमाल किए उसने, और जो अंबिया भेजे हमारी तरफ, और अल्टीमेटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और उसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए हलाल करार दी, कुछ हराम करार दी, ये उसी का है इख्तियार। मैं और आप मखलूक हलाल को जो अल्लाह ने कह दिया उसको हम हराम हराम नहीं ठहरा सकते, नाउजुबिल्लाह, और जो उसने हराम कह दिया उसको कोई हलाल नहीं कह सकता, ये उसका इख्तियार है। कानून साजी जितनी भी है सूरह निसा में और सूरह नूर में और पूरे कुरान में, जो मुख्तलिफ कवानीन अल्लाह ताला ने दिए हैं, मुआशरे के कानून हैं, वरासत के कानून हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये अल्लाह का हक है। हमें उनके ऊपर मनोअन जो है वो अमल करना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपने हकूक में और अपने इख्तियारात में वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। दुआ, ए अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं इन सब में तुझे यकता, यानी ये चारों की चारों जो बातें हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ात, सिफात, हकूक, इख्तियारात में यकता है। तो यहाँ पे हमें दुआ करनी चाहिए क्या, या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम ये चारों की चारों जो कैटेगरीज हमने पीछे पढ़ी हैं इसमें आपको यकता माने। और ये बड़ी बारीक सी लाइन है, ये इंसान ऐसे फिसल जाता है हल्की सी चीज से कि कहीं पे वो जब
अपना तकिया रब के अलावा किसी और मखलूक पे या किसी और सबब पे करने लगता है तो फिर ये मामला है। सबब इख्तियार करना ये हुक्म है, यही अल्लाह ताला ने तरीका बताया कि सबब इख्तियार करो लेकिन तकिया अल्लाह पर करोगे। डॉक्टर से दवाई लेके आओगे लेकिन तकिया दवाई पे नहीं, अल्लाह की जात पे करोगे। अपना एहतिसाब कीजिए कि कितनी मर्तबा मैंने नफ्स की मानी, शैतान की मानी। अपना एहतिसाब लाजमी है, हमें सुबह शाम अपना एहतिसाब करना चाहिए, क्योंकि शैतान हमें उचक लेता है, वो ताकतवर है। लेकिन आऊज़ु बिल्लाह जब पढ़ते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन हम अक्सर इग्नोर कर जा, हमें याद नहीं रहता, तो हम सेफ्टी फर्स्ट वाला फार्मूला भूल जाते हैं। प्लानिंग कीजिए, नफ्स और शैतान की इताअत से निकलने का मंसूबा बनाइए। बेहतरीन महीना जा रहा है जी, बेहतरीन टाइम है। लघु बातों से इंसान बचा रहता है, शैतान जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो जो पहले लड़ाई अपने नफ्स और शैतान से होती थी, अब सिर्फ अपने नफ्स से है। इस वक्त शैतान तो बंद है, तो ये जो असर है यह अपने नफ्स का है, ये जो पूरा साल शैतान की सुनता रहा। तो प्लानिंग कीजिए, इस महीने में ही आगे आखिरी अशरा भी आएगा इंशाल्लाह। इत्तिकाफ बैठिए, बंदोबस्त कीजिए, तबलीग कीजिए, ये बात दूसरों तक भी पहुंचाइए कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह अपनी सिफात में, अपनी ज़ात में, अपने इख्तियारात में, अपने हकूक में यकता है। और ये बड़ी बारीक लाइन है जिसका इंसान को ख्याल रखना है कि कहीं शैतान उसको फिसलवा ना दे इधर से उधर। अल्लिमू उख्तबू, आप इसको सीखिए, जानिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए एहसास के साथ। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह इस्म है, और अस्समदु, अस्समदु बेनियाज। अस्समदु क्या है जी? बेनियाज। और इससे क्या मतलब है कि बेनियाज कैसे है? कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज है। पूरी दुनिया के सारी मखलूकात अगर ईमान ले आए तो रब ताला की जात को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर सारे के सारी इनकार कर जाएं तो फिर भी उसकी जात को कोई फर्क नहीं। ये मखलूक को ही फर्क पड़ेगा, अल्लाह की जात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना आप उसको बढ़ा सकते हैं, ना आप उसको घटा सकते हैं, वो परफेक्ट है। अल्लाह बेनियाज है, यानी उसे नींद नहीं आती, उसे थकन नहीं होती, उसको किसी की जरूरत नहीं है और कोई उसकी जरूरत नहीं है। सब की सब जो है वो उसी के मोहताज हैं, सबको उसकी जरूरत है। तो हमें हर दम ये अपनी कोशिश करनी चाहिए और अपने जहन में ये चीज रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला से हम हर वक्त ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी तमाम मखलूक़ात जो हैं उनका ख्याल रखता है, उनकी ज़रूरियात पूरी करता है। और इसी तरह वो हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करता रहे, और हमें अपने अलावा किसी और की तरफ जाने के ख्याल से भी दूर रखे। तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूक़ात की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। इसी तरह अल्लाह की अजमत को जहन में रखते हुए इस आयत को पढ़िए कि वो बेनियाज है, दे रहा है, देता जा रहा है। सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। कोई उसको देने वाला? वो दे ही नहीं सकता, सवाए किस चीज के। कि कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि है कोई मुझे जो कर्जे हंसना दे। ये अल्लाह ताला खुद फरमाते, इंसान के लिए कितनी बड़ी बात है। ये आप सोचिए कि नेक अमाल करें, लोगों को दें, खर्च करें अल्लाह के रिस्क में से, तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसको बढ़ा के दूंगा। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह सिखाइए लोगों को कि आपने कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद के बारे में जो सीखा, लोगों को बताइए, सिखाइए। लम यलिद, लम आप पढ़ चुके हैं कि लम नफी के लिए आता है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। लम
मतलब डेड नॉट, पास्ट की बात, लम डेड नॉट, और लन विल नॉट ये आता है फ्यूचर में। तो यहां पे लम यूज हुआ है, लम यलिद, नहीं उसने जना, नहीं उसने जना, लम यलिद। ये जो यलिद है इसी के मादा से ये वालिद, वालदा, वालदैन, औलाद, वलादत, मिलाद, ये सब इसी एक सेम, उर्दू में भी इसी मादे से हैं, अरबी में यही मादा इस्तेमाल हुआ है यलिद से। वलम यूलद, और ना ही वो जना गया, यानी अल्लाह ताला की, इंसान तो है ना जी, उसके उसके जो रिश्ते हैं वो ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, दाएं भी हैं, बाएं भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला का तो ना ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई रिश्तेदार नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है, वो अकेला है, वो यकता है, वही तो हर चीज का बनाने वाला है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। यलिद जो है उसने जाना, तो ये एक्टिव वॉइस, इंग्लिश में बचपन में हम पढ़ा करते थे, ये एक्टिव वॉइस है। तो यलिद उसने जाना एक्टिव वॉइस है, युलद वो जना गया ये पैसिव वॉइस है। ये सारे तरीके आपको इसलिए डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे, आसानी रहे आपको। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। इससे कुछ जो पॉइंट लेते हैं कि ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। औलाद अल्लाह की जरूरत नहीं है, जब इंसान थक जाता है तो बच्चे उसको बहलाते हैं, इंसान बूढ़ा होता है तो बच्चे सहारा हो जाते हैं, इंसान मर जाता है तो वो उसका नाम, उसकी डायनेस्टी लेके चलते हैं। अल्लाह ताला को इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला के अंदर ये जो खामियां हैं ये है ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी की, ना वो थकता है ना वो बूढ़ा होता है, और वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। इस आयत को पढ़ते हुए इस पैगाम को 150 करोड़, अब तो खैर शायद ज्यादा होंगे, और भी 150 करोड़ ईसाइयों तक पहुंचाना, ये अपने अंदर कम से कम एक अज़्म बनाई है कि ये मैसेज पहुंचाना लोगों को कि अल्लाह ताला ने किसी को नहीं जाना, उसका कोई औलाद नहीं है और ना वो जना गया, उसके कोई पेरेंट्स नहीं। यही उसकी, यही रब होने का जो जो एक यानी रिक्वायरमेंट है, जो तारीफ है, वो यही है कि ना वो जना गया, ना वो उसने जना किसी को। तो रब के अलावा, एक अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। इवन जो बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे, जिनके बुत बना दिए गए, वो भी देखें बुजुर्गों को अल्लाह ने बनाया, वो बुतों की तरफ उनकी उनकी तशबीहात बनाने में शैतान ने लगाया, बुत जो है वो इंसानों ने बनाए और फिर उनको आगे आपने बिठा लिया। हजरत ईसा भी मखलूक है अल्लाह की, हजरत उज़ैर भी मखलूक है अल्लाह की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखलूक में से हैं, अशरफ तरीन मखलूकात में से, मखलूक में से अशरफ तरीन हस्ती हैं। लेकिन बहरहाल मखलूक है, अंबिया रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। वल्लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हम सर कोई। वलम, वलम और नहीं, यकुन है, कुन फयकुन से आप याद रखें, यकुन, वलम यकुन और नहीं है, लहू ये आप जानते हैं, लहू उसका, उसके लिए, मिसाल लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आगे सूरत आ जाएगी इंशाल्लाह। ये भी कुफुवन, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। उफ उफ का जो लफ्ज है, हमसर बराबरी, उर्दू में कहाँ इस्तेमाल होता है, ये देखिए, लड़के का खानदान लड़की का खानदान बराबर, देखिए रिश्ता तय करते वक्त कुफू का ख्याल रखा जाए, तो ये यहाँ से है, ये अरबी का लफ्ज होता है, हमसर बराबरी, तो उसकी तो बराबरी है ही नहीं। अहद, कोई, ये वो अहद शुरू में आपने देखा था कि वहां रब के बारे में वो अकेला यकता, यहाँ पे हुआ है कि कोई एक भी उसके बराबर नहीं है, कोई एक भी उसका हमसर नहीं है, इस मानी में, तो कोई के मानी में आ जाएगा यहाँ पे।
वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। कुल हुवल्लाहु अहद, ये एक शुरू में इस्तेमाल हुआ अल्लाह के लिए कि सिर्फ अल्लाह के लिए एक, अहदुन, कोई मनफी मानों में यहाँ पे वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कोई एक भी नहीं है जो कि उसका हमसर हो। असबाब क्या लेते हैं जी कि अल्लाह की अजमत ऐसी कि कोई दूर दूर तक भी नजर ना आए, मिसाल भी ना हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि उस जैसी दो मिसाल ही कोई, ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में, चारों कैटेगरीज में ना कोई उसके मिसल है, ना दूर दूर है ही कोई, दूर दूर तक क्या है ही कोई नहीं, यानी किसी भी एंगल से मुमकिन ही नहीं है। सोचिए क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूं? अगर मैं डरता हूं, किसी से कोई उम्मीद लगा रखी है, किसी को मैं ताकतवर समझता हूं, तो अपने जहन से निकाल देना चाहिए। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान जो है वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाए जाके। अल्लाह ताला ने अकल इसीलिए दी है। इसका मतलब ये है कि इंसान किसी ये इंसान ये जाने कि किसी काम के होना या ना होना ये मेरे अल्लाह के पास है। तो अगर उसको बहुत शिद्दत से कोई काम चाहिए कि ये हो जाए, तो अल्लाह के आगे दुआ करे, दो नफल पढ़े, हाजत की दुआ करे, या अल्लाह मुझे अता फरमा, मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता फरमा, या नहीं है तो बेहतर नेमुल बदल दे दे। तो अल्लाह ताला कभी दुआ रद्द तो करते नहीं है, या उसी वक्त दे देंगे या उसका अल्टरनेट दे देंगे, किसी मुसीबत से बचा लेंगे, या फिर तीसरा क्या कैटेगरी है कि क़यामत वाले दिन के लिए बचा रखेंगे और उस दिन उसको बढ़ा चढ़ा के अजर मिलेगा। तो हमें दुआ ये करनी चाहिए हमेशा, वही हस्बी अल्लाह व निअमल वकील वाली, कि ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा। ये हम अपने जहन में रखें हर चीज, और ये जहन में रखें कि अल्लाह काफी है हमारे लिए। इवन किसी इंसान से भी हमारा कोई दुनियावी काम है, सबब की हद तक उसके पास जाएंगे, जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरी करेंगे। आपको अगर शनाख्ती कार्ड बनाना है तो उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ घर में बैठे या अल्लाह शनाख्ती कार्ड बन जाए तो वो एकदम शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, नौकरी चाहिए एप्लीकेशन देंगे, इंटरव्यू देंगे, लेकिन दुआ रब ताला से करेंगे, क्योंकि रब ही है जो उस इंटरव्यू लेने वाले का भी जो है उसके दिल में आपके लिए एहसास मोहब्बत पैदा कर देगा, इज्जत पैदा कर देगा, और वही है जो आपके टेस्ट भी आपके लिए इजी कर देगा। तो ये जो पर्चियां हम लेके जाते हैं, ये प्रॉब्लम है कि जब आपने अपना एक जेन्युइन काम कर लिया, आपने जॉब एप्लीकेशन दे दी, आपने उसके लिए तैयारी की, आपने इंटरव्यू दे दिया, और अब ये समझना कि यार जब तक पर्ची नहीं चलेगी तो ये मेरा काम नहीं होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी या मुझे एडमिशन नहीं मिलेंगे जब तक मैं सिफारिश नहीं। ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। बस आपने अपना काम किया जेन्युइन तरीके से, अब आप अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ हो जाए पूरे मतवज्जो, उसकी तरफ यकसुई के साथ इबादत करें, नफल पढ़ें, उससे दुआ मांगे कि या अल्लाह मैं जो कर सकता था, मेरे इख्तियार में जो तूने दे रखा था मैंने कर दिया, अब किसी मखलूक का मुझे मोहताज ना कर, मैं सिर्फ तेरा मोहताज हूँ और तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। तो अल्लाह ताला आपके काम आसान कर देंगे। आप इस ये वाली सोच लेके आए और आप देखें कि कैसी चेंज आती है इंसान में और उसके कामों। अल्लाह सिखाइए, लोगों को बताइए ये कितनी अजीम सूरत है, 4 आयात है लेकिन कितनी अजीम है, ये हमारे रब का तारुफ है। एक सहाबी इस सूरत को हर रकत में पढ़ते थे, जमात कराते थे तो रकत में यही पढ़ते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने शिकायत कर दी कि ये तो जमात कराते हैं हर सूरत में, यानी ईशा पढ़ा रहे हैं तो यानी यही पढ़ रहे हैं, फजर पढ़ा रहे हैं तो यही पढ़ रहे हैं, हर रकत में यही पढ़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या आप ऐसे ही कर रहे हैं? तो कहने लगे कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं यानी इसको पढ़ता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो हमें इस सूरत से मोहब्बत करनी चाहिए। ये खाली ये नहीं है कि हम कुल हु अल्लाह 4 आयतें पढ़ लें एक रूटीन की बात में, लिप सर्विस, बस कोई पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो ये हमें जहन में रखना चाहिए जी कि इस सूरत से मोहब्बत करनी है। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह का तारुफ है। हर दफ़ा एक नए अंदाज से इसको देखें कि जैसे आप पहले एक बार किसी से मिलते हैं और आप फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर जानते हैं, और गहराई से जानते जाते हैं। तो एक सूरत आपको अल्लाह के कितने करीब कर देगी। मोहब्बत से बार बार पढ़िए, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है, कोई उसके हमसर नहीं है। माफ करने वाला वैसा है कोई? हम तो छोटी छोटी बातें माफ नहीं कर सकते। दिल में एक जो है वो कीना गिल रखते हैं एक दूसरे के लिए। ऊपर से हो सकता है किसी को फेशियल एक्सप्रेशन से या ऊपर ऊपर से किसी के साथ बात भी करते हो, मुस्कुरा भी देते हो, लेकिन दिल में एक आग है उसके लिए। तो रब तो माफ करने वाला, जरूरत पूरी करने वाला कोई है, जरूरत पूरी करने वाला। अगर हम दिन में बहुत कोशिश भी करें कि आज हमने किसी भिखारी को डांटना नहीं है, जो हमसे मांगेगा उसको हम देंगे, तो चौथे पांचवें पे जाके हिम्मत हार जाती है। फिर बंदा वही ज़हन में आने लगता है कि अच्छा ये देख स्लाइड चेंज करता हूँ, हम जाएंगे अपनी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 11B में आपको खुशामदीद है। ग्रामर है और फेल माजी को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह, जो हमने शुरू किया था कल, और टीपीआई का ही तरीका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। कलमे के जो 3 किस्में हैं, इस्म फेल हर्फ, हम जानते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी रिवीजन है। ये अगर आप इसको जरा देख लेते हैं कि किताबुहु इस्म के साथ जब ज़मीर को मिलाते हैं, अटैच ज़मीर है, ये देखें अटैच। किताबु, किताब के साथ हमने हु को मिलाया तो किताबुहु हो गया। उसकी किताब, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना। अब हर्फ ले ले, मिन ले ले, मिन के साथ मिन हु, उससे, मिन हो, मिन का, मिन्नी, मिन कुम, मिन्ना। और फिर आप फेल माजी को ले लें, ठीक है। अब हम फेल ले लेते हैं कि फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। तो ये हमारी प्रैक्टिस में है। ये मैं एक रिवीजन आपको बस साथ में करा दी। वर्ब फेल जो होता है 3 हरूफ से बनता है अक्सर अरबी में, और जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, दरबा, ये 4 पैटर्न जो हम लेके चल रहे हैं इस कोर्स में। तो फेल की भी 3 किस्में होती हैं। एक फेल माजी होता है जो हो गया, गुजर गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे होता है जो काम अभी हुआ नहीं, हो रहा है या होगा फ्यूचर में। फेल अमर है, इम्पेरेटिव टेंस है, ये हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल माजी जो हो गया, इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये टेबल कौन साथी करवाएंगे हमें? फ़अला का रिवीजन ही है ये एक किस्म की। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, ऑलराइट। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। यानी फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया। फ़अलतुम
آپ سب نے کیا اور فعلنا ہم سب نے کیا. یہ بھی ہم جانتے ہیں جی حل فعلا نام فعلا، حل فعلتا نام فعلتم، حل فعلتم نام فعلنا، یہ بھی ہم پریکٹس کر چکے. کل ہم نے اگزامپل دی تھی جی زیدن کی، زیدن کی اور زیدن کی. تو یہ آپ دیکھ لیجیے کہ اب ہم ایک اگزامپل اور لیتے ہیں خیرن کی. خیرن یعنی بھلائی، خیرن جس پر اثر پڑے. خیرن جو ہوگا یہ اصلی حالت میں ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ بھلائی، یہ جو سبجیکٹ ہوگا کرنے والا. اور خیرن یہ چینج حالت میں ہے، یہ آبجیکٹ ہوگا جس پر اثر پڑے گا. تو اس کو سمجھنے کے لیے جب ہم عربی بول چال کی جملے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے. تو یہاں پہ ہے حل فعل خیرن، حل فعل خیرن، نام فعل خیرن. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حل فعل خیرن کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بھی بتا دیں، مائک اوپن کریں، بتا دیں کہ حل فعل خیرن کا کیا مطلب ہے. کیا آپ نے خیر کا کام کیا؟ جی ٹھیک ہے، کیا اس نے بھلائی کی، کیا اس نے خیر کا کام کیا، بالکل صحیح ہے. اور یہ فعلہ سے آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ فعلہ ماضی کی بات ہے. تو نام فعل خیرن، اس نے کیا بھلائی کا کام. اسی طرح حل فعلت خیرن، اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ حل فعلت خیرن تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم فعلتو، فعلتو، ٹھیک ہے، فعلتو خیرن. آپ کو پتا ہے کہ تو جو ہوتا ہے یہ میں ہوتا ہے عربی میں. تو حل فعلتم خیرن کیا جواب دیں گے اس کا؟ اب آپ سب کو میں پوچھ رہا ہوں، حل فعلتم خیرن؟ نعم فعلت. ماشاء اللہ. آج کا سبق ہے جی ضربا، سمیع، عملا اور علیما اور عمیلا. ضربا اس نے مارا، سمیع اس نے سنا، علیما اس نے جانا علم سے جیسے، اور عاملہ جیسے کرتے ہیں عمل کیا اس نے عمل کیا. تو ضرب ہوتا ہے جی مارنا، ضربا مثلا اس نے مثال بیان کی. تو قرآن میں بھی آتا ہے مثال کے لیے ساتھ ضربا مثلا آتا ہے. تو ضربا اس نے مارا، ضربو تم سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، اور ضربنا ہم سب نے مارا. اور یہ ہمارا ایک ٹیبل ہو گیا جی. حل ضربا کیا مطلب ہوگا جی اس کا؟ حل ضربا کیا اس نے کیا اس نے مارا، کیا اس نے مارا. ویری گڈ. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ورب ہے اس کے اندر کرنے والا چھپا ہوا ہے. ضربا کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے جو غائب ہے. تو حل ضربا اس نے مارا. آپ کہتے ہیں ما ضربا، اس نے نہیں مارا. ما ضربا اس نے نہیں مارا. حل ضربو ما ضربو، حل ضربتا ما ضربتو، حل ضربتم ما ضربنا. زیدن پھر آ گیا جی، زید پھر آ گیا، یہ ہر جگہ آئے گا اور آتا رہتا ہے. اصلی حالت زیدن اور جو چینج حالت ہے وہ زیدن ہے، یہ آپ جانتے ہیں. آپ تو اس کو آپ ضربا کے ساتھ ملا لیتے ہیں. حل ضربا زیدن، حل ضربا زیدن کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کیا اس نے زید نے مارا، کیا زید نے مارا. alright، چلے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں زیدن آپ نے کہا کیا زید نے مارا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دو حالتیں ہیں. زیدن یہ اگر ہوتا تو یہ کرنے والا یعنی عمل کیا ہو رہا ہے؟ مارنا، ضربا. تو اگر زیدن ہوتا تو پھر ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ شاید زید نے مارا ہے. لیکن کیونکہ زیدن ہے تو یہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر اثر پڑ رہا ہے. ہاں اس کا مطلب ہے کہ زید کو مارا. بالکل، یعنی مار جو پڑ رہی ہے وہ زید کو پڑ رہی ہے. یہاں سے یہ دن سے یہ پتا چل رہا. کلیئر ہے؟ سر جیسے ہم کسی کو بولتے خیرن، آپ نے بولا بلائی، تو ہم کسی کو بولتے ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرا، آپ پر خیر ہو. تو اس طرح جی وہ اس لیے کہ خیر
किस पे हो रही है? जिस पे असर पड़ रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं खैरन कसीरा। ठीक है, तो इसी तरह हल दाराबा ज़ैदन है, तो असर किस पे पड़ रहा है? ज़ैद पे पड़ रहा है। दाराबा किसने किया वो हमें नहीं पता कि वो उसने मारा, वो कौन है, वो गायब है, वो नहीं पता हमें। तो हम ये कहते हैं कि हल दाराबा ज़ैदन, तो क्या उसने जैद को मारा? हम कहते हैं मा दाराबा ज़ैदन, नहीं उसने जैद को नहीं मारा। हल दरबू ज़ैदन, बात वही है, अब उन सब ने मारा। और इसी तरह हल दरबता ज़ैदन, क्या आपने मारा जैद को? मा दरबतु ज़ैदन, मैंने नहीं मारा जैद। हल दरब तुम ज़ैदन, क्या आप सब ने मारा जैद? नहीं, मैंने नहीं मारा। ये आगे इंशाल्लाह आपको एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, समिया, समिया उसने सुना, समिया उसने सुना, समी अल्लाहु लिमन हमिदहू, ये हम रुकू से उठते हुए नमाज में जब पढ़ते हैं। समिया उसने सुना, समियो उन सब ने सुना, समेत, बल्कि कोई प्रैक्टिस करवा दे आप में से, कौन प्रैक्टिस करवाएगा ये टेबल समिया का? सर मैं करवा जी, काइंडली करवा दीजिए प्लीज। समिया उसने सुना, समेउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। जी सिस्टर महविश, आप भी प्रैक्टिस करवा दीजिए जरा हमें। यस सर। समिया इसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समीत आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसी तरह हल समिया, क्या उसने सुना? हल समियु, हल समेता, हल समेतु, तो ये सारे अब आपको पता है। तो इसके साथ अब हम एक और लफ्ज लेते हैं, अल कुरान। तो अल कुरान, देखें अब यहाँ पे ये अल लगा हुआ है कुरान से पहले, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि नून के ऊपर दो पेशनी है, कुरान नून नहीं लिखा हुआ, ये अल कुरान नू है, क्योंकि एक कायदा आपको पता है कि जब अल लगता है तो फिर आखिरी हर्फ के ऊपर तनवीन नहीं आती, एक पेश आएगी। वेरी गुड, एक पेश या एक जबर, यानी तनवीन नहीं आएगी, यानी दो जबर नहीं आएंगी, दो पेश नहीं आएंगी, दो जेर नहीं आएंगी। तो जब अल लगे तो अल कुरान बात हो रही, ये असली हालत है, करने वाला। अब ये क्या करने वाला है? ये सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, ठीक है, ये फाइल के तौर पे आएगा। जब ये अल कुरान आएगा, भाई कुरान पढ़ते हुए बेशुमार दफा आपने अल कुराना दोनों पढ़े होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है जिस पर असर पड़ रहा होता है। अब ये असर कैसे पड़ेगा, ये मिसाल आपको ज्यादा अच्छा समझा देगी। ये जो अल कुरान और अल कुराना, ज़ैदन ज़ैदुन, और ये इसका जो फर्क है खैरन खैरुन का। अब आप देखिए, हल समी अल कुराना, क्या मतलब होगा इसका? क्या इसने सुना? कुरान सुना? क्या उसने कुरान कुरान सुना? अब देखिए यहाँ पे जो काम है वो क्या हो रहा है? सुनना। काम क्या हो रहा है? सुनना, ठीक है। और वो सुना किसको जा रहा है, यानी उस सुनने का असर किस पे पड़ रहा है, यानी क्या चीज सुनी जा रही है? अल कुरान, कुरान को। कुरान यहाँ पे अल कुराना एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है कि जिसको सुना जा रहा है। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, तो हल समी अल कुराना, नाम समी अल कुराना, हल समी उल कुराना, नाम समी उल कुराना, हल समेत अल कुराना, क्या आपने कुरान सुना? नाम समेत अल कुराना, जी मैंने कुरान सुना। हल समेतुम कुराना, नाम समेना अल कुराना, हाँ हमने कुरान सुना। इसी तरह ये टेबल जो है कोई प्रैक्टिस करवा दें हमें। अलीमा का, अलीमा उसने जाना, अलीमा उसने जाना, अलीमो उन सब ने जाना, अलिमता
आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और इसी तरह ये वाला टेबल भी करवा दें। ये अमिला है, ये अमल, वो इल्म था, ये अमल है। तो आमिला उसने अमल किया, आमिलो उन सब ने अमल किया, आमिल था आपने अमल किया, आमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। बहुत अच्छे है। सिस्टर महविश आप भी करवा दीजिए प्लीज एक दफा। यस सर। सारे लोग आमिला साथ में अपने अपने कंप्यूटर पे ऐसे इशारे करें, जरूर ये प्रैक्टिस जरूर करें जैसे मैं आपके साथ कर रहा होता हूँ। जी सिस्टर ओके महविश। सर। आमिला उसने अमल किया, आमिलू इन सब ने अमल किया, आमिलता आप सब ने अमल किया, आमिलतू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप जहन में रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बन जाएं? कैसे बने? हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने कहते सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो कर रहा होता है। और डेफिनेटली यहाँ पे जो फोर मोस्ट या हाईएस्ट प्रायोरिटी का इल्म है वो कुरान का इल्म है यहाँ पे। तो ये आप देखिए कि जब आप ये वक्त निकालते हैं, ये सीखते हैं, तो आपके लिए ना सिर्फ जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है बल्कि फरिश्ते पर बिछाए होते हैं आपके लिए। कितनी बड़ी बात है, कैसा प्रोटोकॉल है कुरान को सीखने और सिखाने में। तो अपना होमवर्क जो है वो आप याद रखिए, रोजाना 5 मिनट देख के तिलावत करें, 5 मिनट जुबानी तिलावत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आज सीख रहे हैं आप, एक एक चीज सीख रहे हैं, एक एक लाइन सीख रहे हैं, एक एक लाइन सिखाएं आगे लोगों को। तो बहुत जरूरी है जी। और अल्लाह ताला से ये हमेशा दुआ करें कि या अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में से शामिल कर दो, क्योंकि बेहतरीन लोग कुरान सीखने और सिखाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबक नंबर 11 के इख्तिताम पर आपने 131 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान पाक में ऑलमोस्ट 31,000 बार रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कल का जो हमारा क्विज है, मिड क्विज, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और याद दहानी करा दूं। कल इसी टाइम पे 5:10 पे जो क्विज है वो होमवर्क की तरह आपके वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर किया जाएगा। ये कल जूम की क्लास नहीं होगी, सिर्फ उसी के अंदर वो आएगा, होमवर्क की तरह ही आपका मिड क्विज आएगा। आपने उसी तरह ही उसको फिल करना है, उसी तरह सबमिट करवा देना है और कोशिश करनी है कि जो टाइम है उसके अंदर अंदर करना है। यानी अगर 1 घंटा टाइम दिया गया है तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको कर देना है, क्योंकि उसके बाद उसको टाइमर लगा होता है, वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका, वो फिर यानी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश ये होती है कि मिड क्विज आपका जो है वो इस तरह आपको दिया जाए कि आप लेट्स से 40 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन टाइम आपको 1 घंटा दिया जाता है। तो इसलिए बिल्कुल कोई वरी की बात नहीं है, आपने क्लासेस अटेंड की हैं, अपने वीडियोस को देखें, अपनी तैयारी करें और इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से इसको कर लेंगे। सर क्वेश्चन कितने होंगे? जी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नॉर्मली इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जी, डिफरेंट वर्जन्स बने हुए हैं, किसी में 60 हैं, किसी में 70 हैं, इस तरह क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे उसी तरह जैसे आपका होमवर्क है उसी तरह ही होते हैं। तो उसमें कोई, और यही जो आपने पढ़े हैं सबक नंबर 1 से लेके सबक नंबर 11 तक, अगर आपने सारे होमवर्क किए हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है एग्जाम के बारे में, कल मिड क्विज के बारे में? नो सर। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड।
تو آپ اپنا ٹارگٹ رکھیے کہ آپ نے ٹیچر بھی بننا ہے اور لوگوں کو سکھانا بھی ہے، اور اپنی کوئز میں 90% اینڈ ابو نمبر لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔